Hello everyone, I am Dr. Sonali and today's lecture is on sterilization and disinfection. This is part 1 of the lecture जिसमें कुछ basic concepts on sterilization and disinfection will be discussed and hot air oven and autoclave discuss होगा. Part 2 में whatever will be left will be discussed. Okay, let's start. Now we'll start with very basic concept in sterilization and disinfection. We understanding the meaning of these terms sterilization disinfection. ठीक है, इनका एग्जैक्ट मतलब क्या होता है. अ very common question which is asked in viva कि what is sterilization, what is disinfection, what is asepsis, and many students get confused, but आज इसे crystal clear करते हैं. ठीक है, now sterilization क्या होता है. sterilization मतलब total annihilation, सर्वनाश. ये सब मार देता है. क्या मार देता है? It will kill your bacteria, it will kill viruses, it will kill fungi, it will also kill your spores. A very important point. Sterilization is a process which kills all the organisms, your bacteria, virus, fungi and spores. उसके बाद एक और point in sterilization which you should know is that after sterilization there is a 10:6 log reduction in the colony forming unit load of organisms. अभी के लिए जस्ट रिमेंबर दिस, इस स्लाइड के एंड में आई विल एक्सप्लेन इसका मतलब क्या होता है. ठीक है, दिस वॉज स्टेरिलाइजेशन. अब आता है डिसइंफेक्शन. नाउ व्हाट इज डिसइंफेक्शन? डिसइंफेक्शन इज अ प्रोसेस विच किल्स योर बैक्टीरिया, viruses, fungi, but it doesn't kill your spores. Remember this point. A very important difference between sterilization and disinfection. Very commonly asked in your viva. It can come as a very direct MCQ, very scoring point. ठीक है, so disinfection में क्या होता है? Disinfection destroys most of the organisms, your bacteria, viruses, fungi, but spores. See, ये sneaky spores. यहाँ पे they are laughing, they are happy. Why? Because disinfection doesn't destroy them. ठीक है, that was your disinfection. अब disinfection, it leads to 10⁻³ log reduction in colony forming unit of microorganisms. ठीक है, अब आता है asepsis और antiseptic. These are chemicals which applied on human skin kills or inhibit the organism. ठीक है, now these antiseptics they are non टॉक्सिक. ये क्या होते हैं? ये होते हैं नॉन टॉक्सिक टू द ह्यूमन स्किन. ठीक है, दैट्स व्हाई वी कैन अप्लाई इट. नाउ रिमेंबर, जैसे एंटीसेप्टिक्स जो है ह्यूमन स्किन पे यूज करते हैं, डिसइंफेक्टेंट्स कभी भी ह्यूमन स्किन पे यूज नहीं करते, ये इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स पे यूज करते हैं. ओके, ये एक पॉइंट याद रखना. क्लियर? नाउ comes your decontamination. What is decontamination? Decontamination is like your स्वच्छ भारत मिशन. ठीक है, डिकंटामिनेशन का मतलब होता है मैनुअल क्लीनिंग, मैनुअल या मैकेनिकल क्लीनिंग विथ सोप, वाटर, डिटर्जेंट से जो भी डेब्रीज, विजिबल डेब्रीज, ऑर्गेनिक मैटर है उनको हटा देना, और उसके साथ साथ कुछ जर्म्स भी हट जाते हैं. ठीक है, दिस इज योर डिकंटामिनेशन. नाउ योर आफ्टर योर डिकंटामिनेशन देयर इज रिडक्शन इन 1 log unit of the coliforming unit. ठीक है, 1 log unit reduction in colony forming unit of microorganism. अब इन सब लाइंस का मतलब क्या होता है? सी, कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट क्या होता है? कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट, इट इज द क्वांटिटी. ये बैक्टीरिया को क्वांटिफाई कर रहा है. ठीक है, इट इज क्वांटिफाइंग बैक्टीरिया. जैसे ये पेन कितने केजी का है, दिस इज द क्वांटिटी, क्वांटिफिकेशन. दूध लीटर में, दैट्स आल्सो क्वांटिफिकेशन. दैट्स ऑल, ये सारे क्वांटिफिकेशन जैसे बैक्टीरिया के लिए क्वांटिफाइंग देम वी कॉल इट कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट. तो कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट का मतलब होता है इट इज अ यूनिट ऑफ लिविंग माइक्रोब्स जो कि फॉर्म करते हैं विजिबल कॉलोनी ऑन योर कल्चर प्लेट्स. ठीक है, जो हम एक कॉलोनी देखते हैं उसको फॉर्म करने के लिए जितने भी यूनिट ऑफ लिविंग माइक्रोब्स लगते हैं उन्हें बोलते हैं कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट. ठीक है, नाउ यू डू वन थिंग, इमेजिन अ सर्जिकल नाइफ. ठीक है, लेट्स इमेजिन अ सर्जिकल नाइफ, a dirty surgical knife with almost 10 lakh colony forming unit organisms on it. ठीक है, अब हमने इमेजिन कर लिया 10 लाख कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट ऑर्गेनिज्म इस पे बैठे हैं. डर्टिकल सर्जिकल नाइफ. अब व्हेन आई एम क्लीनिंग इट बाय डिकंटामिनेशन देयर इज 1 log unit reduction in colony forming unit, मतलब माइक्रोब इज डिक्रीज्ड बाय 90%. ठीक है, अगर मैंने डिसइंफेक्शन से इसे क्लीन किया, सो माइक्रोब इज देयर इज 10⁻³ log reduction in colony forming unit,
मतलब माइक्रोब इज रिड्यूस्ड बाय 99.9%, ठीक है। एंड स्टेरिलाइजेशन, द कंप्लीट एनहाइलेशन, जब हमने इसे यूज किया, सो देयर वाज 10:6 लॉग रिडक्शन इन कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट, मतलब 99.9999% डिक्रीज इन माइक्रो पॉपुलेशन। इसका मतलब क्या हुआ? ऑलमोस्ट जीरो, एग्जैक्टली जीरो नहीं बट ऑलमोस्ट जीरो। दैट्स वाई स्टेरिलाइजेशन को कहते हैं एनहाइलेशन, सब खत्म कर देता है वो, स्टेराइल कर देता है किसी भी चीज को। तो ये सर्जिकल नाइफ आफ्टर स्टेरिलाइजेशन क्या हो जाएगा? स्टेराइल, कंप्लीटली स्टेराइल। सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का क्या हो गया? सर्वनाश, सफाया, खत्म हो गए। क्लियर? So these were some basic points. Now let's move ahead. Now let's see the classification. We'll start with classification of sterilization. We'll start with the physical method. Physical method में आता है first heat based method, ठीक है। Physical method of sterilization are those method जैसे जो physical factors use करते हैं, like heat हो गया, radiations हो गए, filtrations, ठीक है। Heat based method में होता है सबसे पहले moist heat. Moist heat मतलब using steam, using moisture. ओके। सेकेंड आता है ड्राई हीट। ड्राई हीट मतलब यूजिंग एयर, यूजिंग हीट, सॉरी, ड्राई हीट का मतलब होता है यूजिंग हीट विदाउट मॉइस्चर, इट्स ड्राई, ठीक है। Let me change the pen. Okay, so this was your heat based. Now heat based, this moist heat and dry heat in sterilization is more than 100 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर दोनों का ही होगा मोर देन 100 डिग्री सेल्सियस। आफ्टर दैट हीट बेस्ड के बाद आता है फिल्टरेशन। नाउ फिल्टरेशन में क्या है? फिल्टरेशन फिल्टर करना, ठीक है। इसमें हम मार नहीं रहे हैं, वी आर नॉट किलिंग द ऑर्गेनिजम्स। व्हाट आर वी डूइंग? हम ऑर्गेनिजम्स को फिजिकली रिमूव कर रहे हैं, ठीक है। वी आर नॉट किलिंग, व्हाट वी आर डूइंग? वी आर रिमूविंग, ओके, फिल्टर कर, जैसे पानी को फिल्टर करते हैं, ओके। आफ्टर दैट रेडिएशन। रेडिएशन में क्या होता है? रेडिएशन में वी यूज एनर्जी वेव, ठीक है। एनर्जी वेव विच किल्स द बैक्टीरियल डीएनए, तो उससे भी बैक्टीरिया मर जाता है, ठीक है। दैट वाज योर फिजिकल मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन। अब आता है केमिकल मेथड्स। केमिकल मेथड्स में वी यूज केमिकल, एथिलीन ऑक्साइड एंड प्लाज्मा स्टेरिलाइजर। अंडरस्टूड? क्लियर? नाउ कमिंग द डिसइंफेक्शन। अब डिसइंफेक्शन क्या था? डिसइंफेक्शन वाज द प्रोसेस जिसमें सब मर जाते हैं। इट डिस्ट्रॉयज एवरीथिंग एक्सेप्ट स्पोर्स। क्लियर? नाउ लेट्स सी डिसइंफेक्शन का क्लासिफिकेशन क्या होता है। डिसइंफेक्शन में सबसे पहले हाई लेवल डिसइंफेक्शन, ठीक है। हाई लेवल के अंदर केमिकल मेथड्स, देन आता है इंटरमीडिएट लेवल, देन आता है लो लेवल, ठीक है। सो डिसइंफेक्शन 3 क्लासिफिकेशन में डिवाइडेड है, हाई लेवल, इंटरमीडिएट लेवल एंड लो लेवल। नाउ अब सी, ये अभी आई जस्ट सुपरफिशियली एक्सप्लेन यू, इसको पार्ट 2 में जाके हम समझेंगे एग्जैक्टली क्या है। अभी जस्ट टू गिव यू सम आइडिया, सी, high level disinfectants are those disinfectants which when used in sufficient concentration or under suitable condition, ठीक है। सो उन कंडीशंस में दे कैन इवन किल द स्पोर्स, ओके, इट कैन इवन स्पोर्स को भी मार सकते हैं। अब यहाँ बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। जब भी आपसे कोई डिसइंफेक्शन का डेफिनेशन पूछे एग्जाम में आए, डिसइंफेक्शन का मतलब इट डिस्ट्रॉयज ऑल द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, एवरीथिंग एक्सेप्ट स्पोर्स, ठीक है, एक्सेप्ट स्पोर्स। अब ये हाई लेवल डिसइंफेक्शन जो है, ये हाई लेवल डिसइंफेक्शन इज एन एक्सेप्शन, ठीक है। हाई लेवल डिसइंफेक्शन व्हेन यूज्ड इन सफिशिएंसी, यहाँ पे एक कंडीशन लग गई, ठीक है। नॉर्मली ऐसा नहीं हो रहा है। जब हाई लेवल डिसइंफेक्शन को सफिशिएंट कॉन्सेंट्रेशन, सुटेबल कंडीशन में यूज किया जाता है, तब जाके वो स्पोर्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। उसमें मोस्टली केमिकल मेथड्स होते हैं, एल्डिहाइड, पेरासिटिक एसिड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ठीक है। इंटरमीडिएट लेवल, इंटरमीडिएट इज ना ही हाई लेवल ना ही लो लेवल, समवेयर बीच का। तो ये तो ऑब्वियसली स्पोर्स को डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसमें फिजिकल मेथड भी आता है, केमिकल मेथड भी आता है। अब सी, आउट ऑफ ऑल 3 ओनली इंटरमीडिएट लेवल ही ऐसा है जिसमें फिजिकल मेथड है, ठीक है। फिर आता है लो लेवल। लो लेवल मतलब ऐसे, मतलब लो लेवल डिसइंफेक्टेंट्स वो डिसइंफेक्टेंट है जो कि ऐसे वीक बैक्टीरियाज लाइक योर वेजिटेटिव बैक्टीरियाज
ऐसे ऑर्गेनिजम्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ठीक है। इसमें भी केमिकल मेथड ही आता है, जैसे योर क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड एंड क्लोरहेक्सिडिन। क्लियर? दिस इज जस्ट टू गिव यू सम आइडिया, इसके बारे में हम डिटेल में पार्ट 2 में पढ़ेंगे, ठीक है। आगे समझ में? नाउ लेट्स मूव अहेड। नाउ लेट्स सी द माइक्रोबिसाइडल एक्शन ऑफ स्टेरिलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन। सी, यहाँ पे ये जो मैंने लिस्ट बनाया है, हियर आई एम मूविंग फ्रॉम अ स्ट्रॉन्ग टू वीकर ऑर्गेनिज्म, ठीक है, स्ट्रॉन्ग टू वीकर ऑर्गेनिज्म। अब इसका मतलब ये नहीं है कि जो इन्वेलप्ड वायरसेस होते हैं और वेजिटेटिव बैक्टीरिया ये वीक है और ये सारे स्ट्रॉन्ग है। ये किस सेंस में बात कर रही हूँ मैं? सी, ये बॉडी में आके इन्फेक्शन कॉज करने वाला स्ट्रॉन्ग और वीक के बारे में बात नहीं हो रहा है। यहाँ पे बात हो रही है माइक्रोबिसाइडल एक्शन ऑफ द स्टेरिलाइजेशन और डिसइंफेक्शन। जो ये स्टेरिलेंट और ये डिसइंफेक्टेंट है, ये किस तरीके से मार सकते हैं, उस लेवल पे वी आर टॉकिंग अबाउट स्ट्रॉन्ग एंड वीक, ठीक है। सो फर्स्ट वी टॉक अबाउट योर इन्वेलप्ड वायरस। इन्वेलप्ड वायरसेस आर दोस वायरसेस जिनके पास लिपिड का बाइलेयर होता है, ठीक है। क्या होता है? लिपिड बाइलेयर। अब सी, लिपिड बाइलेयर इज इजियर टू रिमूव, ठीक है, सिंपल सोप वॉशिंग से भी रिमूव हो जाता है, दैट्स व्हाई इसे वीकर कहा गया है, ठीक है। इन्वेलप्ड वायरस का एग्जांपल क्या होता है? HIV होता है, इन्फ्लुएंजा होता है। आर दे रियली वीक वायरस? लाइक अगर ये बॉडी में जाए तो इट कैन कॉज सीरियस इन्फेक्शन। सो ये इन्फेक्शन कॉज करने के सेंस में वीक और स्ट्रॉन्ग नहीं है, ये स्ट्रॉन्ग और वीक है ऑन द माइक्रोबिसाइडल एक्शन ऑफ द स्टेरिलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन, ठीक है। Clear? So enveloped virus has lipid bilayer, so it is easier to kill it. अब योर वेजिटेटिव बैक्टीरिया, जो वेजिटेटिव बैक्टीरिया है, सी, ये क्या होता है? ये नॉर्मल बैक्टीरिया। अब जो नॉर्मल बैक्टीरियाज होते हैं उनमें क्या होता है? पेप्टिडोग्लाइकन, पॉलीसैकेराइड लेयर्स, ठीक है। दिस इज ऑल्सो ईजियर टू क्रॉस एंड गेट रिड ऑफ, ठीक है। उसके बाद आता है फंगाई। अब देखो, एनवेलप वायरस से वेजिटेटिव बैक्टीरिया से फंगाई। फंगाई का सेल वॉल में क्या होता है? फंगाई के सेल वॉल में काइटिन होता है, काइटिन इज टफ, ओके। फिर आता है नॉन एनवेलप्ड वायरस। अब जो नॉन एनवेलप्ड वायरस है उसमें कोई लिपिड का तो लेयर होता नहीं है, उसमें क्या होता है? उसमें कैप्सिड लेयर होता है, ठीक है। दिस कैप्सिड लेयर इज मेड अप ऑफ प्रोटीन, दैट्स व्हाई इट्स आल्सो स्ट्रॉन्गर। उसके बाद ट्यूबरकल बैसिलाई, वी ऑल नो ट्यूबरकुलस बैसिलाई में क्या होता है? माइकोलिक एसिड, दैट्स व्हाई दिस इज आल्सो स्ट्रॉन्गर। और बैक्टीरियल स्पोर्स तो होता ही एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सा स्ट्रक्चर। क्लियर? अंडरस्टूड? सो ये स्ट्रॉन्ग टू वीक किस सेंस में था, समझ में आ गया? इट्स डोंट एवर कंफ्यूज इट बाय ये बॉडी में कैसा इंफेक्शन कॉज कर रहा है उसके लेवल पे। क्लियर? ठीक है। नाउ लेट्स फिल दिस टुगेदर, साथ में ये फिल करते हैं। अब स्टेरिलेंट, स्टेरिलेंट जो है किन किन को मार सकता है? स्टेरिलाइजेशन क्या था? अल्टीमेट एनहाइलेशन, सर्वनाश, सबको मार देगा। बैक्टीरियल स्पोर्स से लेकर ट्यूबरकुल बैसिलाई से नॉन एनवेलप वायरस, फंगाई, वेजिटेटिव बैक्टीरिया, एनवेलप वायरस, सब खत्म, ठीक है। अब डिसइंफेक्शन, डिसइंफेक्शन में हाई लेवल डिसइंफेक्शन। डिसइंफेक्शन का डेफिनेशन क्या था? बैक्टीरियल स्पोर्स को नहीं मारेगा, उसके अलावा इट विल किल ऑल द ऑर्गेनिज्म। क्लियर? बट क्या बोला था मैंने? हाई लेवल डिसइंफेक्शन व्हेन यूज्ड इन सफिशिएंट कॉन्सेंट्रेशन अंडर सुटेबल कंडीशंस, अंडर सम कंडीशंस, वो क्या करता है? वो स्पोर्स को भी मार सकता है। क्लियर? दैट्स व्हाई यहाँ पे आई एम पुटिंग अ प्लस, ठीक है। अब आता है इंटरमीडिएट लेवल डिसइंफेक्शन। इंटरमीडिएट लेवल एज ये ना ही बहुत हाई है ना बहुत लो है, तो स्पोर्ट्स पर तो ये बिल्कुल भी काम नहीं करेगा, ठीक है। उसके बाद ये बाकी सब पे इट विल वर्क। क्लियर? नाउ योर लो लेवल इज समथिंग व्हिच इज अ वीकर disinfectant. It is very, it works only against your enveloped virus, your vegetative virus, and your even your fungi and non-enveloped virus. The action is very, अगर ज्यादा concentration में यूज किया, टाइम के लिए यूज किया तो कर सकता है, अदरवाइज नहीं। और ट्यूबरकल बैसिलाई और बैक्टीरियल स्पोर्स के लिए तो ये बिल्कुल ही काम नहीं करता। ओके, अंडरस्टूड? ये टाइप टेबल समझ में आ गया। नाउ लेट्स मूव टू स्पॉल्डिंग्स क्लासिफिकेशन। Spalding classification is classification of the medical devices, ठीक है, based on the, इसको डिवाइड करते हैं कैटेगरीज में, हाई रिस्क कैटेगरी, लो रिस्क कैटेगरी, इंटरमीडिएट कैटेगरी। तो सबसे पहले आता है क्रिटिकल डिवाइस। क्रिटिकल डिवाइस इज अ रिस्क कैटेगरी, ठीक है, ये हाई रिस्क कैटेगरी है। क्यों? बिकॉज क्रिटिकल डिवाइसेस वो डिवाइस हैं जो एंटर करते हैं नॉर्मली स्टेराइल साइट, ठीक है। अब देखो, जो भी एक नॉर्मल स्टेराइल साइट पे आ रहा है, वहां पे हमारी बॉडी में
कोई भी सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट है, मान लो कि आई हैव टू यूज अ सर्जिकल फॉर अ ब्रेन सर्जरी, फॉर अ हार्ट सर्जरी, वो डायरेक्टली आपके ब्रेन हार्ट को टच कर रहा है, सो इट हैज टू बी कंप्लीटली स्टेराइल। हम उस पर एक स्पोर, एक ऑर्गेनिज्म का भी होना अफोर्ड नहीं कर सकते। दैट्स व्हाई रिकमेंडेड मेथड क्या होगा, स्टेरिलाइजेशन। मेडिकल, तो उसमें मेडिकल इक्विपमेंट्स कौन से आते हैं क्रिटिकल डिवाइस में, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, योर इम्प्लांट्स जो बोन के जगह जाके लग रहा है तो वो भी स्टेराइल एरिया है, योर रिजिड एंडोस्कोप, योर syringes or needle, syringe और needle डायरेक्टली ब्लड में जा रहा है, राइट, सो इट हैज टू बी कंप्लीटली स्टेराइल, कुछ भी नहीं होना चाहिए। अगर इट एंटर्स एनीथिंग एंटर इन योर ब्लड स्ट्रीम, एनी ऑर्गेनिज्म, इट विल कॉज सेप्सिस। ओके, ठीक है, ये था क्रिटिकल डिवाइस। अब आता है सेमी क्रिटिकल डिवाइस। ठीक है, सेमी क्रिटिकल डिवाइस में क्या है, मतलब इट इज थोड़ा सा इंटरमीडिएट रिस्क है इसका। ठीक है, सो इट इज आइटम्स इन कॉन्टैक्ट विथ म्यूकस मेम्ब्रेन और बॉडी फ्लूइड, स्टेराइल साइट नहीं बट म्यूकस मेम्ब्रेन और बॉडी फ्लूइड, तो इसमें हम हाई लेवल डिसइंफेक्टेंट यूज कर सकते हैं। कौन कौन से इक्विपमेंट्स आते हैं, योर रेस्पिरेटरी इक्विपमेंट्स जैसे योर ह्यूमिडिफायर, नॉन इन्वेसिव फ्लेक्सिबल एंडोस्कोप जैसे योर लैप्रोस्कोप्स, आर्थ्रोस्कोप, बेड पैन्स और यूरिन बॉटल। फिर आता है अपना नॉन क्रिटिकल डिवाइस, दीज आर द डिवाइस विच हैज द लोएस्ट रिस्क कैटेगरी में आता है ये। आइटम्स इन कॉन्टैक्ट विथ इंटैक्ट स्किन, जो स्किन पे कॉन्टैक्ट हो रहा है उसमें क्या आएगा, इंटरमीडिएट और लो लेवल डिसइंफेक्टेंट। ठीक है, इसमें क्या आता है, सी ब्लड प्रेशर कप्स जो हम यूज करेंगे, ईसीजी लीड्स, थर्मोमीटर, स्टेथोस्कोप, एनीथिंग विच इज बीइंग यूज्ड ऑन योर इंटैक्ट स्किन। ठीक है, क्लियर। नाउ वन पॉइंट विच यू शुड सी हियर, एंडोस्कोप क्रिटिकल में भी है, एंडोस्कोप सेमी क्रिटिकल में भी है। सी व्हेन इट्स अ रिजिड एंडोस्कोप, रिजिड एंडोस्कोप नॉर्मली एंटर्स अ स्टेराइल साइट, तो इसमें स्टेरिलाइजेशन यूज करता है होता है। ठीक है, योर फ्लेक्सिबल एंडोस्कोप नॉन इन्वेसिव, क्या ये नॉन इन्वेसिव फ्लेक्सिबल एंडोस्कोप है, तो ये मोस्टली स्टेराइल साइट में नहीं आता है, सो हाई लेवल डिसइंफेक्शन से भी इसे क्लीन किया जा सकता है। क्लियर, अंडरस्टूड। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फिजिकल मेथड्स ऑफ इसमें ड्राई हीट। नाउ ड्राई हीट में सबसे पहले आता है फ्लेमिंग। फ्लेमिंग में क्या होता है, सी हम सब ने, वी आर वेरी फेमिलियर विद दिस बंसन बर्नर। ठीक है, फ्लेमिंग में हम क्या करते हैं, इस बंसन बर्नर में वी हीट वट एवर वी हैव टू स्टेरिलाइज, मोस्ट कॉमनली इनॉक्यूलेशन लूप। ठीक है, आपके टेस्ट ट्यूब्स का जो अपर पार्ट होता है, हेड ऑफ द टेस्ट ट्यूब, वो इनॉक्यूलेशन लूप, इनॉक्यूलेशन लूप को हम इसमें डाल के ऐसे रखे रहेंगे एंड जब तक ये रेड हॉट ना हो जाए तब तक इसे डाले रहेंगे। रेड हॉट हो गया मतलब वो स्टेरिलाइज हो गया, दैट इज फ्लेमिंग। सेकंड आता है इंसिनरेशन। अब इंसिनरेशन क्या होता है, इंसिनरेशन होता है हाई टेम्परेचर पे जलाना। कितना टेम्परेचर, 870 से 1200 डिग्री। अब इंसिनरेशन इतने हाई टेम्परेचर पे चीजों को क्या करता है, राख बना देता है, एश में टर्न कर देता है। सो इट विल टर्न whatever thing you have to incinerate into gas and ashes. Clear? उसके बाद आता है हमारा hot air oven. Now we'll discuss what is hot air oven. Okay? Now hot air oven. Hot air oven ये है. This is what your hot air oven looks like. अगर आप कभी भी माइक्रो लैब गए होंगे तो आपने ये देखा होगा. This is how it looks. अब this is sterilization using hot and dry air. हॉट एंड ड्राई मतलब मॉइस्चर नहीं है, ठीक है, इट्स डिप्राइव्ड ऑफ द मॉइस्चर। इट इज क्या यूज करता है, ये यूज करता है इलेक्ट्रिक हीटिंग प्लस फैन। उससे क्या होता है, सी यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे यूनिफॉर्म हीट डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रिकल हीटिंग और फैन से ये हीट का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्मली हो रहा है। फिर इसका कोर प्रिंसिपल ये है, बिकॉज ऑफ सच हाई टेम्परेचर क्या होता है, ऑक्सीडेशन ऑफ सेल कंपोनेंट्स हो जाता है। जितना हाई टेम्परेचर वी यूज देयर इज ऑक्सीडेशन ऑफ द सेल कंपोनेंट्स, देयर इज प्रोटीन डैमेज व्हिच अल्टीमेटली लीड्स टू द डेथ ऑफ द सेल एंड इतने हाई टेम्परेचर पे स्पोर्स आर आल्सो किल्ड। ठीक है, तो याद रखना इसका प्रिंसिपल क्या है, इज ऑक्सीडेशन। वाइवा में वेरी कॉमनली आस्क्ड, इवन एमसीक्यू में भी आ सकता है, व्हाट इज द principle of hot air oven. So hot air oven is, it is used at such a high temperature, वो भी आगे बताऊंगी मैं, that there is oxidation of cell components, protein gets damaged and spores are killed. ठीक है, now what is that temperature I was talking about, condition it is
160 degree Celsius. So to such high temperature for 2 hours. You have to memorize this. Alternatively 170 degree for 1 hour, but ये फर्स्ट वाला तो आपको हमेशा याद रखना है, 160 डिग्री फॉर 2 आवर्स. इसे बोलते हैं होल्डिंग टाइम एंड टेम्परेचर. ठीक है, क्या? होल्डिंग टाइम एंड टेम्परेचर. इसका मतलब क्या होता है होल्डिंग टाइम एंड टेम्परेचर? मतलब अब जब मैंने हीट किया वो तुरंत तो 160 नहीं पहुंचेगा. 160 जैसे ही पहुंचता है, 160 पहुंचने के बाद हम 2 घंटे तक उसे स्टेरिलाइज होने देते हैं. दिस इज योर होल्डिंग temperature 160. For how long? You keep the hot air oven at 160 degree for 2 hours. Okay. Now अब किन चीजों को हम hot air oven में sterilize करते हैं? All those things which doesn't like moisture and which are heat resistant. Obvious सी बात है, 160 degree पे material has to be heat resistant. Okay. I'm sorry for the spelling. Heat resistant. Okay. कौन कौन से होते हैं वो आइटम्स? ग्लासवेयर, योर पेट्री डिश, टेस्ट ट्यूब्स, मेटल इंस्ट्रूमेंट, योर स्कैल्पल एंड फॉरसेप्स एंड योर केमिकल्स. अब केमिकल्स मोस्टली दे डोंट लाइक मॉइस्चर, लाइक योर ऑयल्स, फैट्स, पैराफिन्स एंड. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द स्टेरिलाइजेशन कंट्रोल ऑफ हॉट एयर. अब सी, स्टेरिलाइजेशन कंट्रोल क्या होता है? स्टेरिलाइजेशन कंट्रोल का मतलब होता है जो ही मैंने हॉट एयर ओवन का होल्डिंग टाइम और टेम्परेचर which is 161 degree for 2 hours holding time and temperature जो भी रखा है वो प्रॉपरली हो रहा है कि नहीं. ठीक है, स्टेरिलाइजेशन साइकिल प्रॉपरली कंप्लीट हो रही है कि नहीं, उसे चेक करने के लिए हम यूज करते हैं स्टेरिलाइजेशन कंट्रोल. ठीक है, कंट्रोल इज टू सी कि वॉट एवर वी आर डूइंग सही है कि. सबसे इंपॉर्टेंट उसमें आता है बायोलॉजिकल इंडिकेटर. बायोलॉजिकल इंडिकेटर इज एन इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू, वेरी इंपॉर्टेंट. ये बहुत बार एग्जाम्स में आ चुका है. अब इसका बायोलॉजिकल इंडिकेटर में आता है बैसिलस एट्रोफियस के स्पोर्स या फिर नॉन टॉक्सिजेनिक स्ट्रेन्स ऑफ क्लॉस्ट्रीडियम टेक्नी. वैसे इफ यू रिमेंबर दिस वेल, गुड इनफ, बट इफ यू डोंट, सो ये याद रखोगे तब भी चलेगा. ठीक है, बैसिलस एट्रोफियस के स्पोर्स. नाउ हम बैसिलस एट्रोफियस के स्पोर्स को यूज करते हैं बिकॉज स्पोर्स, इनके स्पोर्स दे आर वेरी हार्ड टू किल. अगर ये 161 डिग्री सेल्सियस पे मर जा रहे हैं मतलब हमारा स्टेरिलाइजेशन साइकिल वाज गुड, इट वाज फाइन, इट वाज कंप्लीटली परफेक्ट था. ठीक है, सो व्हाट आई विल डू इज आई विल पुट दीस स्पोर्स इन द हॉट एयर ओवन अलोंग विद माय मटेरियल्स टू बी स्टेरिलाइज. उसके बाद क्या करूंगी, जब मेरा होल्डिंग टाइम एंड टेम्परेचर खत्म हो जाएगा एंड आई विल टेक एवरीथिंग आउट, मैं इसे भी साथ में बाहर निकालूंगी एंड आई विल ट्राई टू ग्रो इट. तो अगर ये ग्रो नहीं करेगा, सी आफ्टर साइकिल, बिफोर साइकिल इट वाज देयर, आफ्टर साइकिल इफ द स्पोर्स आर नॉट ग्रोइंग मतलब योर स्टेरिलाइजेशन वाज एडिक्वेट. ठीक है, ये होता है बायोलॉजिकल इंडिकेटर. रिमेंबर बैसिलस एट्रोफियस स्पोर्स, वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, अब आता है केमिकल कंट्रोल. केमिकल कंट्रोल में हम यूज करते हैं ब्राउनीज ट्यूब. ठीक है, अब ब्राउनीज ट्यूब क्या होता है, ये एक रेड या एम्बर कलर का केमिकल होता है एक टेस्ट ट्यूब में. स्टेरिलाइजेशन जब भी स्टार्ट होता है सो वील पुट इट इन द हॉट एयर ओवन विथ योर मटेरियल्स एंड जब ये खत्म हो जाता है स्टेरिलाइजेशन वील टेक इट आउट एंड इफ इट टर्न टू ग्रीन, ठीक है, इफ इट टर्न्स टू ग्रीन मतलब स्टेरिलाइजेशन वाज एडिक्वेट, बढ़िया हुआ स्टेरिलाइजेशन. एंड अगर ये ग्रीन नहीं टर्न होता है इसका मतलब योर स्टेरिलाइजेशन साइकिल हैज फेल्ड. ठीक है, ब्राउनीज ट्यूब, रिमेंबर हॉट एयर ओवन, ओवन में वी बेक ब्राउनी, तो ब्राउनीज ट्यूब. ठीक है, नेक्स्ट आता है फिजिकल कंट्रोल. फिजिकल कंट्रोल में व्हाट वी सी, टेम्परेचर एंड टाइम डिस्प्ले को कहते हैं फिजिकल कंट्रोल. ओके, दिस वाज योर स्टेरिलाइजेशन कंट्रोल ऑफ हॉट एयर ओवन. क्या क्या पढ़ा हमने अब तक? बायोलॉजिकल कंट्रोल. बायोलॉजिकल कंट्रोल में क्या था? बैसिलस एट्रोफियस स्पोर्स. केमिकल कंट्रोल में क्या था? ब्राउनीज ट्यूब एंड देन फिजिकल कंट्रोल. क्लियर? नाउ we'll talk about your moist heat sterilization, your autoclave. Now see, ऑटोक्लेव इज मोस्टली एक मशीन नहीं है. ओके, ऑटोक्लेव इज प्रेशर टेम्परेचर का गेम है. अभी एक बार समझ लिया, यू विल ऑलवेज रिमेंबर दिस. ठीक है, इट्स वेरी सिंपल. सो लेट्स टुडे कंप्लीटली अंडरस्टैंड ऑटोक्लेव क्या होता है. ऑटोक्लेव में प्रिंसिपल ऑफ ऑटोक्लेव क्या है, वील कम टू दिस लेटर. पहले बहुत ही जनरल फिजिक्स पढ़ देखते हैं जो हमने क्लास 8-9 में पढ़ा होगा. वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री, वी ऑल नो दैट. बट वाटर कब बॉइल करता है 100 डिग्री पे? व्हेन वेपर प्रेशर इक्वल्स दैट ऑफ द सराउंडिंग एटमॉस्फेयर, दैट इज योर सराउंडिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर. ठीक है,
अगर मैं इसी कंटेनर को क्लोज कर दूं, मैंने इसी पानी को मान लो प्रेशर कुकर में डाल दिया एंड आई एम यूजिंग अ क्लोज्ड कंटेनर, उससे क्या होगा? अब सी क्लोज्ड कंटेनर से क्या हुआ? आई हैव इंक्रीज द प्रेशर, पानी वही है बट पानी का जो अब सराउंडिंग है, क्योंकि ये क्लोज कंटेनर है तो सराउंडिंग का प्रेशर इंक्रीज कर दिया है। अब उस सराउंडिंग के प्रेशर को मैच करने के लिए जो वेपर प्रेशर है वो पहुंचने के लिए टेम्परेचर सिर्फ 100 नहीं रहेगा, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। अब वाटर को ज्यादा टेम्परेचर चाहिए टू मैच दिस सराउंडिंग प्रेशर, सो it will be 120 degree Celsius. तो उसमें क्या होगा? There will be microbes will die. So what is the principle of autoclave? Increase pressure, increase in boiling point, higher temperature steam and better killing. ठीक है, क्या समझा? नॉर्मली वाटर कैसे बॉइल हो रहा है? 100 डिग्री पे, क्योंकि वेपर प्रेशर सराउंडिंग प्रेशर के इक्वल होने पे हो जाता है। क्लोज कंटेनर में क्या होता है? अंदर का जो प्रेशर इंक्रीज कर दिया मैंने, वाटर वही है, वाटर के सराउंडिंग में क्योंकि क्लोज कंटेनर है उसका प्रेशर इंक्रीज कर गया। अब सराउंडिंग अब सेम वाटर को टू इंक्रीज टू रीच दैट वेपर प्रेशर टू, ताकि वो सराउंडिंग प्रेशर से मैच कर सके, टेम्परेचर बढ़ाना होगा। समझ में आ गया? तो अब वाटर 100 डिग्री पे नहीं, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक है, 120 डिग्री पे बॉइल होगा। सो दैट इज योर प्रिंसिपल। सो हाई टेम्परेचर स्टीम से क्या होगा? इरिवर्सिबल कोगुलेशन, denaturation of enzymes and structural proteins and it will kill all microbes including spores. ठीक है, अब सी यहाँ पे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिसमें माइक्रोब्स होंगे, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? वाटर जो स्टीम में कन्वर्ट हुआ है, ठीक है, ये जो स्टीम है इट विल कम एंड कंडेंस ऑन द सरफेस। ठीक है, जब मैंने 121 डिग्री पे मेंटेन किया हुआ है तो क्या होगा? वाटर विल कम एंड कंडेंस ऑन द सरफेस। जब स्टीम जो है कंडेंस होगा ऑन दिस सरफेस, इट विल रिलीज लेटेंट हीट। लेटेंट हीट क्या होता है? हिडन हीट। जो लेटेंट हीट रिलीज होगा उससे हाई एनर्जी रिलीज होगी विच विल ऑल्सो किल द ऑर्गेनिजम्स। सो हाई टेम्परेचर स्टीम से इरिवर्सिबल कोगुलेशन, denaturation of enzymes and structural protein and latent heat से high energy, all of this responsible for killing your microbes including spores. जब भी वाइवा में आएगा दिस इज हाउ यू हैव टू एक्सप्लेन, और एमसीक्यूज में आएगा तो ये सारे पॉइंट्स जहां भी देखे मतलब इस ऑटोक्लेव के बारे में बात हो रही है। ठीक है, नाउ let's talk about types of autoclave. So we have your vertical autoclave and we have your horizontal autoclave. ठीक है, अब सी ऑटोक्लेव के पार्ट्स क्या क्या होते हैं? एक होता है प्रेशर चेम्बर, ये या तो गन मेटल या स्टेनलेस स्टील का बना होता है। प्रेशर चेम्बर के अंदर ही हम अपना सारा आइटम टू बी स्टेरिलाइज डालते हैं। ठीक है, एक परफोरेटेड ट्रे के अंदर के ऊपर, सॉरी परफोरेटेड ट्रे के ऊपर हम अपने आइटम्स रखते हैं विच हैज टू बी स्टेरिलाइज। परफोरेटेड क्यों? ताकि स्टीम जो है प्रॉपरली पास हो सके। अब सी या तो वाटर इसी चेम्बर के अंदर होता है, डिपेंड्स ऑन डिजाइन। अगर ऐसा ऑटोक्लेव हो तो एक सेपरेट कंपार्टमेंट में वाटर होता है। ठीक है, अब इलेक्ट्रिकल हीटर का काम क्या होता है? यहाँ पे वाटर को गर्म करके स्टीम जनरेट करना। तो अगर तो यहाँ पे डायरेक्टली स्टीम यहाँ पे आ जाता है, जनरेट हो गया प्रेशर चेम्बर के अंदर। ऐसे इस टाइप के ऑटोक्लेव में water is being heated here, so the steam circulate from this chamber to the inner chamber. ठीक है, and once steam reaches this pressure chamber, फिर it has to circulate freely among the items जो भी अंदर रखे हैं। it should circulate freely among the items, सबको वो freely मिलना चाहिए ताकि वो अच्छे से स्टेरिलाइज हो सके। ठीक है, उसके बाद we have your discharge tap। अब discharge tap का फंक्शन क्या है? टू रिमूव एयर। ठीक है, जैसे जैसे स्टीम आ रहा है वैसे वैसे एयर रिमूव होते जाएगा। डिस्चार्ज टैप का यही फंक्शन है टू सी एयर एंड स्टीम का मिक्सचर रिमूव करना। वाई इज इट इम्पोर्टेंट टू रिमूव द एयर? बिकॉज अगर एयर रहेगा सो इट विल हैम्पर स्टेरिलाइजेशन। अगर एयर बचा रहता है तो वो कोल्ड स्पॉट्स बना देता है, प्रॉपर स्टीम नहीं मिल पाता है इंस्ट्रूमेंट्स को। ठीक है, देन वी हैव योर सेफ्टी वॉल्व। सेफ्टी वॉल्व इज टू रिलीज एक्स्ट्रा स्ट्रीम, ये आपकी सीटी की तरह है। जैसे प्रेशर कुकर में सीटी होती है उसी तरीके से ऑटोक्लेव में सेफ्टी वॉल्व होता है। क्या करता है सेफ्टी वॉल्व?
सेफ्टी वाल्व एक्स्ट्रा स्टीम को रिलीज कर देता है, ठीक है। सो ताकि वो फटे नहीं, प्रेशर कुकर फट जाता है वैसे ऑटोक्लेव भी फट सकता है। देन वी हैव योर प्रेशर गॉज। प्रेशर गॉज ये डिस्प्ले एंड मेंटेन, डिस्प्ले द टेम्परेचर, योर प्रेशर जो भी आप मेंटेन कर रहे हैं। व्हाट इज द टाइम एंड व्हाट इज द होल्डिंग टाइम एंड टेम्परेचर? So autoclave works only when air is removed and pure steam under pressure surrounds the material. As this is the sterilization time, this is the sterilization temperature, and this is the sterilization pressure, which I was telling you. 121 degrees Celsius for 15 minutes at 15 pounds per square inch. Remember this, memorize this, this is very important. ठीक है, 121 डिग्री सेल्सियस, ये तो इजी है, 15 मिनट्स एट 15 पाउंड्स PSI, ठीक है। अब हम किन किन चीजों को ऑटोक्लेव करते हैं? ऑटोक्लेव उन्हें करते हैं विच आर हीट रेजिस्टेंट एंड मॉइस्चर रेजिस्टेंट, ठीक है। जैसे कि कल्चर मीडिया। अब कल्चर मीडिया को प्लास्टिक पेट्री डिश में डाल के वी डोंट ऑटोक्लेव, व्हाई? बिकॉज प्लास्टिक पेट्री डिश मेल्ट कर जाएगा ऑब्वियसली, तो प्लास्टिक इज आउट। कल्चर मीडिया को व्हेन वी आर प्रिपेयरिंग द कल्चर मीडिया, सो जो ग्लास बीकर होता है और कल्चर मीडिया में लिक्विड फॉर्म में होता है, उसी टाइम ऑटोक्लेव में डाल देते हैं। जब वो ऑटोक्लेव से बाहर निकाला जाता है, सो ये कल्चर मीडिया फिर कूल ऑफ हो जाता है थोड़ा, देन वी पोर इट इन द पेट्री डिशेस एंड आफ्टर दैट इट सॉलिडिफाइज। ऐसे ही कल्चर मीडिया बनाया जाता है। सेकेंड इज योर सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट। उसको भी, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट को मोस्टली रैप करके वी पुट इट इनसाइड, ताकि वैसे तो ये मॉइस्चर रेजिस्टेंट ही होता है बट स्टिल ताकि मॉइस्चर लगने से वो खराब ना हो जाए। उसके बाद बायोमेडिकल वेस्ट। नाउ बायोमेडिकल वेस्ट मोस्टली क्या होता है कि जो भी बायोमेडिकल वेस्ट जनरेट हुआ है उसे ऐसे ही नहीं फेंक सकते बाहर इन्वायरमेंट में, वी नीड टू स्टेरिलाइज इट। डिसइंफेक्ट नहीं, स्टेरिलाइज करना है। जब इन्वायरमेंट में कोई भी चीज़ आप बाहर उसे डिस्पोज करने जा रहे हो, किसी भी वेस्ट को, स्पेशली हॉस्पिटल के वेस्ट आर हाईली इन्फेक्शियस, सो व्हाट डू? वी ऑटोक्लेव देम, we make it non-infectious, ठीक है। तो बायोमेडिकल वेस्ट, देन योर लिनेंस लाइक योर OT के जो ड्रेप्स होते हैं, आपके जो लैब कोट होता है, उन सबको आप ऑटोक्लेव कर सकते हो। देन योर पिपेट टिप्स, दैट कैन ऑल्सो बी ऑटोक्लेव, ओके। नाउ कमिंग टू द स्टेरिलाइजेशन कंट्रोल फॉर ऑटोक्लेव, वेरी इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल इंडिकेटर, MCQ ये इंपॉर्टेंट आ सकता है। जियोबैसिलस स्टेरोथर्मोफिलस, उसका क्या था हॉट एयर ओवन का? बैसिलस एट्रोफियस। इसका क्या है? जियोबैसिलस स्टेरोथर्मोफिलस। जब भी कंफ्यूजन हो ऑलवेज रिपीट विथ मी, जियोबैसिलस स्टेरोथर्मोफिलस, ठीक है। दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। या ये तो डायरेक्टली आएगा या तो ये पिक्चर MCQ में भी आएगा। दे विल गिव यू दिस पिक्चर एंड दे विल आस्क यू व्हाट इज दिस। सो हम क्या करते हैं, वी विल पुट दिस इन आवर ऑटोक्लेव एंड आफ्टर द स्टेरिलाइजेशन होल्डिंग टाइम टेम्परेचर प्रेशर खत्म हो जाता है, जब निकालेंगे वील पुट दिस इंडिकेटर इन दिस रीडर, दिस बायोलॉजिकल इंडिकेटर रीडर। फिर ये हमें बताता है कि ये स्पोर सर्वाइव कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो स्पोर सर्वाइव नहीं करने चाहिए, ओके। दिस वॉज योर बायोलॉजिकल इंडिकेटर। नेक्स्ट कम्स योर केमिकल इंडिकेटर। केमिकल इंडिकेटर इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट MCQ। सी इतने सारे इंडिकेटर्स यूज इसलिए करते हैं, ये स्टेरिलाइजेशन का प्रोसेस है। स्टेरिलाइजेशन में क्या होता है, वी हैव टू गेट रिड ऑफ एवरी ऑर्गेनिज्म, इवन द स्पोर्स। जितने भी इवन सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट यूज हो रहे हैं कल को ब्रेन सर्जरी में, हार्ट सर्जरी में, इवन जो भी स्टेराइल एरिया में जा रहा है बॉडी के, पेशेंट के बॉडी के, इट शुड बी डिवॉइड ऑफ एवरीथिंग, इवन स्पोर्स। दैट्स व्हाई इतने सारे इंडिकेटर्स यूज करते हैं टू सी हमारा स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस एडिक्वेटली चल रहा है कि नहीं, ठीक है। केमिकल इंडिकेटर में आता है क्लास 1। 3 क्लासेस के केमिकल इंडिकेटर होते हैं। सबसे पहला एक्सटर्नल इंडिकेटर, इसे बोलते हैं ऑटोक्लेव टेप। क्या नाम है? ऑटोक्लेव है तो ऑटोक्लेव टेप। ये क्या करता है, इंडिकेट वेदर द पैक वाज एक्सपोज्ड टू हीट और स्टीम ड्यूरिंग द साइकिल और नॉट। इसका एक्चुअली बस इतना ही काम है, तो बस बताना कि वो एक्सपोज हुआ था कि नहीं। सो दिस इज एन autoclave tape. It's a tape. So what do? We'll take the instrument which has to be sterilized. We'll wrap it in a cloth और उसके बाद हम ये autoclave tape उस पे चिपका देते हैं। After sterilization, this color change indicator है, मतलब exposure था, और अगर नहीं है तो sterilization cycle has failed. This is your class 1 indicator. अब आता है class 2 indicator. Class 2 indicator is your Bobby Dick test. It's a special test. This is also important for your MCQ. Now is what it checks your
air removal plus steam penetration, but it is specifically done in a pre-vacuum autoclave. अब देखो, see, first of all, it looks like this. This is a paper. It's actually a paper. अनप्रोसेस्ड होता है, डालने के पहले ऐसा दिखता है, अगर पास हो गया तो ऐसा दिखता है, फेल हो गया तो ऐसा दिखेगा. सी, what is the meaning of this line? It is specifically in pre-vacuum autoclave. जो भी ऑटोक्लेव मैंने आपको अब तक बताया, इट वॉज ग्रेविटी डिस्प्लेसमेंट ऑटोक्लेव. ग्रेविटी डिस्प्लेसमेंट ऑटोक्लेव में क्या बोला था मैंने? स्टीम आ रहा है, स्टीम जो है पैसिवली स्टीम के चलते एयर आउट हो रहा है. ठीक है, स्टीम भर गया, एयर आउट हो गया, दैट इज ग्रेविटी डिस्प्लेसमेंट. ग्रेविटी से एयर पास हो गया. बट प्री वैक्यूम में क्या होता है? प्री वैक्यूम में एयर रिमूवल इज एक्टिव. एयर रिमूवल इज डन बाय अ वैक्यूम पंप. ठीक है, तो ऐसे ऑटोक्लेव में वेयर एयर रिमूवल इज डन बाय अ वैक्यूम पंप, जैसे ही हम एयर रिमूवल करते हैं और कोई भी स्टेरिलाइजेशन का सामान डालना है, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट कुछ भी डालने के पहले ही वी विल पुट दिस बॉबी डिक पेपर विल पुट इनसाइड, एंड हम अपने स्टेरिलाइजेशन टाइम एंड टेम्परेचर, होल्डिंग टाइम एंड टेम्परेचर के बाद वी विल टेक इट आउट. अगर ये ऐसा दिख रहा है मतलब it has passed, air removal was successful and proper steam penetration is there. अगर ये ऐसा दिख रहा है मतलब it's failed. Clear? Okay. लास्ट आता है now. See, class 1 है, class 2 है, class 3 नहीं है. So don't go like 1 2 3. It's 1 2 and 4/5. This is internal indicator. We have to put it inside the pack. This is how it looks like. अब इससे जैसे मान लो ये एक पैक है, ये एक पैक ऑफ स्टेरिलाइजेशन जो होने के लिए इंस्ट्रूमेंट्स है, ये दूसरा पैक है. हर पैक के अंदर वील पुट दिस पैक इंटरनल इंडिकेटर. ये इट इज केप्ट इंटरनली, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड इंटरनल इंडिकेटर. नाम से ही याद हो जाएगा. ठीक है, हर जब भी स्टेरिलाइजेशन करने के लिए कुछ भी डालेंगे, so it will be put in each pack internally. So it is internal pack. अब ये क्या बताता है? It will tell कि temperature properly, holding temperature maintain था कि नहीं, holding time maintain था कि नहीं, and every instrument में steam का जो penetration है, जो steam का flow था, वो proper था कि नहीं. This was everything about part 1 lecture, sterilization and disinfection. I hope it was helpful. जो भी बचा है we'll do in part 2. Okay? Any doubt? Please mention it in the comments. Thank you.